हेलो एवरीवन। सो टुडे टॉपिक इज शॉक। तो आज शॉक देखते हैं। सो व्हाट इज शॉक? शॉक होता क्या है? शॉक इज़ अ शॉक इज़ अ स्टेट ऑफ शॉक इज़ अ स्टेट ऑफ पुअर परफ्यूजन with impaired cellular metabolism with impaired cellular metabolism. So shock is a state of poor perfusion with impaired cellular metabolism. It is due to a circulatory collapse or tissue hypoxia. So it is mainly due to circulatory collapse. It is mainly due to circulatory collapse and tissue hypoxia. So normal anaerobic metabolism is not mentioned due to hyperperfusion. So basically shock is meant by inadequate perfusion to maintain normal organ function. तो क्या होता है? shock is meant by inadequate perfusion. Shock is meant by inadequate perfusion to maintain normal organ function. So what is the shock का ये definition हुआ? What is shock? Shock is a state of poor perfusion with impaired cellular metabolism. It is due to the circulatory collapse and tissue hypoxia. Hypoxia condition में चला जाता है और circulatory system collapse हो जाता है तो shock appear हो जाता है. Shock is meant by inadequate perfusion to maintain normal organ function. CTION normal organ function. Inadequate perfusion. तो shock का mainly ये definition हो गया. Now how many types of shocks are? Types of shock. There are 6 types of shock. Number 1, vasovagal shock. Number 2 is neurogenic shock. Number 3 is hypovolemic shock, also known as the hemorrhagic shock, जो कि most common होता है shock. Fourth one is cardiogenic shock. Fifth one is cardiac compression shock. And number 6 is septic shock. Number 7 is anaphylactic shock. Number 6 is anaphylactic shock. Number 7 is anaphylactic shock. So there are 7 types of shock with vasovagal shock, neurogenic shock, hypovolemic shock जो कि most common होता है, cardiogenic shock and septic shock, cardiac compression shock and anaphylactic shock. तो mainly आज septic shock देखेंगे, hypovolemic next वीडियो में देखेंगे. आज सेप्टिक शॉक इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो सेप्टिक शॉक देखते हैं. सेप्टिक शॉक में भी ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. ये क्या होता है? इट मे बी ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव organism and gram negative organisms, fungi, viruses और protozoal origin. ग्राम नेगेटिव सेप्टिशेमिया और ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक इज कॉल्ड एज इंडोटॉक्सिक शॉक. इंडोटॉक्सिक शॉक क्या होता है? तो ग्राम नेगेटिव सेप्टिशेमिया, ग्राम नेगेटिव septic shock is called as endotoxic shock. So gram negative septicemia and gram negative septic shock is called as endotoxic shock. इसे endotoxic shock बोलते हैं. ठीक है. It occurs due to gram negative bacteria infection जो कि commonly strangulated intestine में देखते हैं, peritonitis में देखते हैं, gastrointestinal fistula में देखते हैं, biliary and urinary infection में देखते हैं, pancreatics में देखते हैं, major surgical wounds में देखते हैं, diabetic wounds में and crushes injuries में देखते हैं. So this bacteria commonly seen in it occurs due to gram negative bacterial infection. Commonly seen in strangulated intestine
peritonitis, gastrointestinal fistula, biliary and urinary infection, biliary and urinary infections, pancreatitis, and major surgical wounds and crush injuries में. Okay, now what is gram positive septic shock? This gram positive septic shock. So due to exotoxin by gram positive, so basically due to exotoxin by gram positive bacteremia, like Clostridium, Clostridium tetani, Staphylococci, Streptococci और Pneumococci. ठीक है, like Clostridium tetani, LG, Staphylococci, Streptococci pneumoniae, Streptococci pneumococci. इसमें फ्लूइड लॉस होता है, हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन होता है, फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोटेंशन मोर कॉमन होगा, एंड विद नॉर्मल कार्डिक आउटपुट. सो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव सेप्टिक शॉक क्या हुआ? ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम लाइक Clostridium tetani, Staphylococci, Streptococci, Pneumococci, and fluid loss इसमें होता है, हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन होता है विद नॉर्मल कार्डिक आउटपुट. नाउ सी व्हाट इज ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक. व्हाट इज ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक? ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक किसे कहते हैं? तो शॉक ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, causes endotoxemia, and its effects are urinary, urinary होता है, gastrointestinal होता है, biliary and respiratory foci more common होता है. gastrointestinal, biliary and respiratory foci are common. सो बेसिकली ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक जो होता है वो इंडोटॉक्सेमिया कॉज करता है. इट कॉजेज इंडोटॉक्सेमिया एंड इफेक्ट्स सीन ऑन यूरिनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, biliary एंड रेस्पिरेटरी फोकाई, जो कि मोर कॉमन होता है. ग्राम पॉजिटिव क्या करता था? वो एक्सोटॉक्सेमिया करता था, एंड ये जो है ग्राम नेगेटिव है इंडोटॉक्सेमिया. ग्राम पॉजिटिव ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन एंड ग्राम नेगेटिव कॉजेज एक्सोटॉक्सेमिया. नाउ व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सेप्टिक शॉक? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सेप्टिक शॉक. पहले तो टॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन रिलीज होगा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइक एस्टेरिया कोलाई, क्लेप्सिला, शिडोमोनास एंड प्रोटियस. तो पहले तो टॉक्सिन्स रिलीज होता है, टॉक्सिन या इंडोटॉक्सिन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स लाइक एस्टेरिया कोलाई, क्लेप्सिला, शिडोमोनास एंड प्रोटियस. देन आफ्टर ये टॉक्सिन रिलीज होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सेलुलर एक्टिवेशन हो जाएगा ऑफ मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का सेलुलर एक्टिवेशन हो जाएगा. सेलुलर एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, सेलुलर एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. एंड आफ्टर ये रिलीज करेगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सेलुलर एक्टिवेशन हो जाएगा मैक्रोफेज का, न्यूट्रोफिल्स का, मोनोसाइट का, तो ये रिलीज करेगा साइटोकाइन्स और फ्री रेडिकल्स. सो देयर इज रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स एंड फ्री रेडिकल्स. देन आफ्टर कीमोटैक्सिस ऑफ सेल का कीमोटैक्सिस होगा, एंडोथेलियल इंजरी होगा, ये अल्टर करेगा कोगुलेशन कैस्केड, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स सिंड्रोम. ठीक है, इसके बाद क्या होगा? रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स, फ्री रेडिकल्स के बाद क्या होगा? इट कॉजेज कीमोटैक्सिस ऑफ शेल, it causes chemotaxis of cells and endothelial injured हो जाएगा, endothelial injury होगा,
ये अल्टर करेगा कोएगुलेशन कैस्केड को, कोएगुलेशन कैस्केड ओके, सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स सिंड्रोम। तो क्या होगा, रिलीज ऑफ साइटोकाइंस का रिलीज होगा, फ्री रेडिकल्स का रिलीज होगा, तो ये कीमोटैक्सिस ऑफ सेल का कीमोटैक्सिस होगा, फिर एंडोथेलियल इंजर्ड हो जाएगा, ये अल्टर करेगा कोएगुलेशन कैस्केड को, जो कि सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सिस्टमिक इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, रिवर्सिबल हाइपरडायनेमिक वार्म स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक विद फीवर एंड टैकीकार्डिया एंड टैकेपनिया। तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हाइपरडायनेमिक वार्म स्टेज होगा, रिवर्सिबल हाइपरडायनेमिक वार्म स्टेज ऑफ शॉक हो जाएगा, वार्म स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक हो जाएगा विद फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फीवर होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टैकेपनिया होगा, और क्या होगा, टैकीनिया हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, after that there is a severe circulatory failure with the multi-organ dysfunction syndrome. After that there is a severe circulatory failure with multiple organ dysfunction syndrome, MODS, जैसे कि फेलियर ऑफ लंग्स हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, liver and heart, with disseminated intravascular coagulation with PIC, disseminated intravascular coagulation. After that क्या होगा, there is a hypodynamic state which is irreversible cold stage of septic shock हो जाएगा, तो hypodynamic stage हो जाएगा, हाइपोडायनेमिक हो जाएगा, एंड irreversible कोल्ड स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक हो जाएगा, कोल्ड स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, टॉक्सिन इंटोटॉक्सिन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइक एस्टेरिया कोलाई, क्लेब्सिला, सीडोमोनास एंड प्रोटियाशे। टॉक्सिन इंटोटॉक्सिन रिलीज होता है एस्टेरिया कोलाई, क्लेब्सिला, सीडोमोनास और प्रोटियाशे। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर सेल एक्टिवेशन हो जाता है ऑफ मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का। फिर आफ्टर दैट देयर इज अ रिलीज ऑफ साइटोकाइंस का रिलीज होता है, फिर रेडिकल्स से रिलीज होता है, फिर सेल्स का कीमोटैक्सिस हो जाता है, फिर एंडोथेलियल इंजर्ड हो जाता है, एंड ये अल्टर करता है कोएगुलेशन कैस्केड को, जिसे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, रिवर्सिबल हाइपरडायनेमिक वार्म स्टेज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, विद फीवर सिर्फ होगा, टैकीकार्डिया होगा एंड टैकेपनिया होगा। जो सीवियर सर्कुलेटरी फेलियर जब होता है, सीवियर सर्कुलेटरी फेलियर होता है जो विद मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम से, जैसे कि लंग्स का फेलियर हो गया, किडनी का फेलियर हो गया, लीवर एंड हार्ट, ये सब एक साथ फेल हो गया विद डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, तो ये हाइपोडायनेमिक के स्टेज में चला जाता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है, और उसे कोल्ड स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक बोलते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट हुआ। नाउ सो बेसिकली सेप्टिक शॉक जो होता है, इट इज अ वेसोडायलेक्ट्रिक शॉक। सेप्टिक shock is typically a vasodilatory shock, होता है ये, wherein there is a peripheral vasodilation होता है, जो कि हाइपोटेंशन कॉज करता है, जो रेजिस्टेंट होता है वेसोप्रेशर से। there is a peripheral causes a hypotension, ये हाइपोटेंशन कॉज करेगा, which is resistant to vasopressure. This is mainly due to toxin induced release of isoform of nitric oxide. This is due to toxin induced release of isoform of nitric oxide, synthesis from vessel wall, which causes sustained prolonged release of high level of nitric oxide, which causes prolonged release of high levels of nitric oxide, ठीक है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फेक्शन इज क्वांटिफाइड एज सेप्सिस विच शो फीवर, टैकीकार्डिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस। सेप्सिस जो फीवर को शो करेगा, टैकीकार्डिया शो करेगा और ल्यूकोसाइटोसिस शो करेगा, ओके। सेप्सिस विच शोज फीवर, टैकीकार्डिया
हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। दूसरा क्या है, सीवियर सेप्सिस कब होता है? सीवियर सेप्सिस शो लो टिश्यू परफ्यूजन, लो टिश्यू परफ्यूजन, ऑर्गन डिसफंक्शन, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा लीवर का, किडनी का, डिसफंक्शन ऑफ लीवर, किडनी का हो जाएगा और किसका हो जाएगा, लंग्स का हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक जो है, सेप्टिक शॉक विद सिस्टमिक हाइपोटेंशन, सिस्टेमिक हाइपोटेंशन, जबकि ब्लड प्रेशर क्या होगा 90 mmHg से कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि उससे फ्लूइड थेरेपी चल रही होगी फिर भी 90 mmHg से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इन स्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड थेरेपी, सीवियर ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा, सीवियर ऑर्गन डिस्फंक्शन, लंग किडनी लीवर का इंजरी हो जाएगा, एक्यूट लंग किडनी लीवर इंजरी, माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, माल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड फ्लो का माल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, माइक्रो सर्कुलेशन का सेंटिंग हो जाएगा, तो सेंटिंग इन माइक्रो सर्कुलेशन, Now let's see the stages of the septic shock. Stages of septic shock. दो स्टेज होता है, एक हाइपरडायनेमिक स्टेज होता है, एक हाइपोडायनेमिक स्टेज होता है। हाइपरडायनेमिक स्टेज जो हो गया वार्म शॉक हो गया एंड हाइपोडायनेमिक स्टेज जो हो गया उसे कोल्ड सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज हाइपरडायनेमिक, हाइपरडायनेमिक जिसे हम वार्म शॉक भी बोलते हैं। तो ये स्टेज रिवर्सिबल स्टेज होता है, इसे रिवर्सिबल, दिस इज अ रिवर्सिबल स्टेज। इसमें पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, सो पेशेंट स्टिल हैविंग, पेशेंट जो होता है पेशेंट स्टिल हैविंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, so present with the fever, tachycardia and tachypnea. पैरोजेनिक रिस्पॉन्स भी स्टिल इंटैक्ट होता है। पेशेंट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली एट दिस स्टेज, पेशेंट को प्रॉपर्ली इस स्टेज में ट्रीट किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर। पैरोजेनिक रिस्पॉन्स भी इंटैक्ट होता है इसमें, इंटैक्ट। इसमें क्या होता है, पेशेंट को इस स्टेज में पेशेंट को अच्छे से ट्रीट किया जाता है ब्लड कल्चर के आधार पे, यूरिन कल्चर के आधार पे, डिपेंडिंग अपॉन द फोकस ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे। इसमें हाइपरडायनेमिक स्टेज जो होता है शॉक का, इसमें ये ट्रीटेबल स्टेज है, यानी कि ये स्टेज रिवर्सिबल है, बट हाइपोडायनेमिक जो स्टेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो हाइपरडायनेमिक वार्म शॉक में एंटीबायोटिक्स देंगे, लाइक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड मेट्रोनिडाजोल से इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अंडरलाइन कॉजेज को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, पश को ड्रेन करेंगे, लैप्रोटोमी करेंगे फॉर पेरिटोनाइटिस, और जो वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे विद आईसीयू मॉनिटरिंग, मतलब जो भी कुछ करेंगे इसे नेक्स्ट शॉक तक पहुंचने के लिए इसे प्रिवेंट करेंगे, जैसे कि कोल्ड स्टेज में ये शॉक ना जाए, इसे पूरी तरीके से प्रिवेंट करेंगे कि कोल्ड स्टेज में ये पेशेंट ना जाए। तो क्या करेंगे, पेशेंट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, पेशेंट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, पेशेंट शुड बी ट्रीटेड properly at this stage based on blood culture, urine culture, based on urine culture, depending on focus of infection, based on urine culture and blood culture, urine culture and blood culture, higher antibiotics, like cephalosporins, like third generation, cephalosporins, aminoglycosides, metronidazole are started, okay. And also the underlying causes is treated, like draining of pus, laparotomy,
लेपेरोटोमी फॉर पेरिटोनाइटिस, एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे विद आईसीयू मॉनिटरिंग, दिस ऑल may prevent the patient going for the next cold stage of sepsis, may prevent the patient going for the next stage, going for तो पहला इसका हाइपर डायनेमिक स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक का क्या है? पहला इसका हाइपर डायनेमिक शॉक है जो कि रिवर्सिबल स्टेज होता है। पेशेंट स्टिल हैविंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, पेशेंट के पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, वो प्रेजेंट करता है फीवर के साथ, टैकीकार्डिया के साथ और टैकिपनिया के साथ। पैरोजेनिक रिस्पांस भी इंटैक्ट होता है इसका। पेशेंट को ट्रीटेड प्रॉपर्ली, इस स्टेज में पेशेंट को प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं ताकि ये नेक्स्ट स्टेज तक ना पहुंच पाए। सो बेस्ड ऑन यूरिन कल्चर एंड ब्लड कल्चर एंटीबायोटिक इसको देते हैं, लाइक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स देंगे, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंड मेटोनिडाजोल से इस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अंडरलाइन कॉजेज को ट्रीट करने के लिए पल्स को ड्रेन करेंगे, लैप्रोटोमी करेंगे फॉर पेरिटोनाइटिस, वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे विद आईसीयू मॉनिटरिंग। तो ये सारे करने के बाद ये पेशेंट को प्रिवेंट करता है फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट कोल्ड स्टेज ऑफ सेप्सिस, जो कि कोल्ड स्टेज में अगर पेशेंट चला जाएगा तो वो इरिवर्सिबल स्टेज हो जाता है। नाउ सेकेंड स्टेज देखते हैं जो कि हाइपोडायनेमिक है। हाइपोडायनेमिक हाइपोवॉलेमिक सेप्टिक शॉक, कोल्ड, इसे कोल्ड सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं, इसे कोल्ड सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पैरोजेनिक रिस्पांस पेशेंट का लॉस्ट हो जाता है, डिकम्पनसेटेड शॉक में चला जाता है पेशेंट, ये इरिवर्सिबल स्टेज होता है। इसमें मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है? पैरोजेनिक रिस्पांस लॉस्ट, patient is in decompensated shock, reversible stage with multiple organ dysfunction syndrome, with anuria, respiratory failure, साइनोसिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, लीवर फेलियर हो जाएगा, कार्डिक डिप्रेशन हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ड्राउजीनेस होगा, इवेंचुअली कॉमा एंड डेथ, पेशेंट गोज ऑन कॉमा एंड डेथ occurs। ठीक है, तो हाइपोडायनेमिक हाइपोवॉलेमिक सेप्टिक शॉक में इसे कोल्ड सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं। ये पैरोजेनिक रिस्पांस में लॉस्ट हो जाता है, पेशेंट डिकम्पनसेटेड शॉक हो जाता है, इरिवर्सिबल स्टेज होता है विद मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, विद एनुरिया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, साइनोसिस देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, इसमें लीवर फेलियर हो जाएगा, कार्डिक डिप्रेशन हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ड्राउजीनेस होगा और इवेंचुअली पेशेंट गोज ऑन कॉमा। नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ द सेप्टिक शॉक। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट ऑफ द सेप्टिक शॉक, तो फ्लूइड करेक्शन होगा सबसे पहले, तो फ्लूइड करेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट बाय सेकेंडली इलेक्ट्रोलाइट बाय क्रिस्टल वाइट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, परफ्यूजन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परफ्यूजन क्या है? परफ्यूजन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे, थर्ड जनरेशन से पहले देंगे, एंटीबायोटिक्स थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। सबसे पहले कॉज को ट्रीट करेंगे, तो ट्रीट द कॉज, जो भी अंडरलाइन कॉजेज है उसको ट्रीट करेंगे और फोकस करेंगे किस पे? ड्रेनेज ऑफ एन एब्सेस, फिर लैप्रोटोमी करेंगे पेरिटोनाइटिस के लिए, फॉर पेरिटोनाइटिस, ये सब हाइपोडायनेमिक स्टेज में ही करेंगे। ठीक है, फिर रिसेक्शन ऑफ गैंग्रियस बॉवेल, फिर उंडिक्सिजन करेंगे, उंडिक्स का एक्साइजन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? पल्स यूरिन डिस्चार्ज, बाइल, ब्लड कल्चर, ये सेंसिटिविटी फॉर एंटीबायोटिक्स है। जो पल्स हो गया, जो भी यूरिन हो गया, जो भी डिस्चार्ज होता है उनसे, बाइल, ब्लड कल्चर,
सेंसिटिविटी फॉर एंटीबायोटिक्स। केयर करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन थेरेपी देने की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, डोपामाइन डोपामिन एड्रेनालिन देंगे टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर यूरिन आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, क्रिटिकल केयर होगा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सपोर्ट होगा, एंड डोपामाइन डोपामिन एड्रेनालिन देंगे टू मेंटेन बीपी एंड यूरिन आउटपुट, टू मेंटेन बीपी को मेंटेन करने के लिए और यूरिन आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। एक्टिवेटेड सी प्रोटीन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, ठीक है। एक्टिवेटेड सी प्रोटीन देंगे, ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। फिर क्या करेंगे, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, तो मॉनिटरिंग द पेशेंट को रेगुलर मॉनिटर करेंगे बाय पल्स ऑक्सीमेट्री, कार्डिक स्टेटस उसका चेक करते रहेंगे, कार्डिक स्टेटस, यूरिन आउटपुट देखेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में 1 और 2 डोज, ठीक है, 1 और 2 डोजेस, शॉर्ट टर्म में हाई डोज देंगे, किस चीज़ का, स्टेरॉइड का, शॉर्ट टर्म हाई डोज स्टेरॉइड थेरेपी टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इंडोटॉक्सिमिया, टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इंडोटॉक्सिमिया। सो दैट्स ऑल, ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक कंप्लीट होता है। तो सेप्टिक शॉक में बस इतना ही।